Hey guys, so this is going to be a video about ECG in which I'll try to explain you the gist of ECG कि exactly कैसे निकलता है ECG lead 2 से and why do we use lead 2. So I'll try to explain you to the logic of the ECG. इससे होगा ये कि जब वाइवा में they'll ask you questions about anything you'll be able to answer because you know obviously what is the cause of each wave. So I'm just giving all the things required for even the answers in case of university. So let's say if they ask you a definition which is what is an electrocardiogram. So it is the graphic record of the electrical activities of the heart, and it is done by placing electrodes on the surface of the body. Now it is not always necessary कि वो surface of the body पे लगाएंगे. They can also put the electrodes directly on the heart. उसको direct method कहते हैं, but that is invasive, so we don't do that. ओके सो ईसीजी का रीडिंग के जो ग्राफ पे होगा, आपको ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल्स में. लाइक वी हैव गॉट 3 मार्क्स के छोटे शॉर्ट्स जिसके अंदर दे टेल यू टू कैलकुलेट द वोल्टेजेस ऑफ लेट्स से पीआर इंटरवल और QRS complex. So for that, just two things need to be remembered. That in the ECG graph, this y-axis will represent the voltage and the x-axis will represent the time. So each small square for that case, like each small square for voltage will be 0.1 millivolt, and each small square on the time axis will be 0.04 seconds. So that will help you to determine the time as well as voltages. In my next video, I'll try to explain the various components of the graph along with the intervals, the normal ranges of the intervals, and what to interpret if let's say the P wave is absent in atrial fibrillation, or anything happens to the QRS complex, or anything happens to the T wave. That will be my next video. Then moving ahead, we come to the leads, which is basic of two types. So we've got the unipolar leads, we've got the bipolar leads. Now the placement of the leads is what is going to affect the basic structure. So I'm going to try to explain to you the unipolar leads and the bipolar leads separately. So what happens is the bipolar leads, like if they ask you about the bipolar leads, we can get confused with the electrodes and the leads. So what we are placing in case of the ECG are the electrodes, but the leads are not seen anywhere because they are imaginary. We only take into consideration the axis of the lead. So on the right arm, both the leads are negative. On the left arm, both the leads on the left leg, both the leads are positive, and on the left arm, one lead will be negative and one lead will be one electrode will be negative and one electrode will be positive. I said lead by mistake. They are electrodes, and the direction of the lead will be from the negative end to the positive end. So in this case, the direction of the axis of the lead will be from left, like from the right arm to the left arm, from the left arm to the left ankle, and from the right arm to the left ankle. So this is the lead that we used most commonly. Now what are these degrees, right? So these are in a hexaxial reference system, that is like a complete circle, we give degrees, right? So the direction of lead 2 in that hexaxial system is plus 60 degrees. And that is the prime reason why we are going to use the lead 2 to calculate all the voltages or all the activities of the heart. Now let's jump right into why we do that. Okay. So here I've drawn the basic direction of conduction in heart, right? We know that the conduction will start from SA node. It will further go on to the AV node. Then what happens is when it reaches the interventricular septum, the depolarization or the conduction will go from the left side to the right side. Like it will shunt like from the left side to the right side. And what will happen is that the direction of conduction was going down at this point, but because of this shift it will go up for a while. So we need to remember that just for the logic that I'm going to come up in later in the video. So after that is done, then the normal conduction will be in the interventricular septum. So that will be again like towards the apex. So this is like the direction towards the apex, away from the apex, towards the apex again,
and when it reaches the to go to the Purkinje fibers and the bundle branches are separated, then the direction is against the apex, like opposite to the direction of the apex. And this was the direction of depolarization of the heart, that is atrial depolarization and ventricular depolarization. The repolarization always occurs from apex towards the base. So always remember, depolarization का direction तो यहाँ से start होके apex तक जाता है. कुछ देर के लिए वो opposite भी हो जाता है कुछ phases में, but mostly इस direction में. और repolarization का पूरा direction opposite होता है from apex to the base. So now we'll come to the fun part to actually try and get what की lead क्यों ऐसा, मतलब why the ECG, right? So they'll ask you what is the logic of waves in VIVA. So I had been asked that, so I am trying to explain that to you. So पहला logic मैं explain करता हूँ P wave का. So P wave का, अब P wave जो होती है वो होती है form atrial depolarization की वजह से. And we know that atrial depolarization के टाइम पे conduction का यानी depolarization का direction जो होगा वो SA node से AV node की तरफ होगा. Now the interesting thing is कि जो vector इस केस में form हो रहा है इस चीज़ का vector, वो लीड टू के वेक्टर के डायरेक्शन में यानी लीड टू के एक्सिस के डायरेक्शन में. अब क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पी वेव विल बी अ पॉजिटिव वेव. अब ये वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होता है, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट टू यू इन 1 मिनट. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द डीपोलराइजेशन का तो डायरेक्शन ऐसा ही होगा कि फ्रॉम एस ए नोड टू द ए वी नोड, एंड इसका भी डायरेक्शन सेम है. सो बिकॉज ऑफ दैट द पी वेव इज अ पॉजिटिव वेव. अब क्यू वेव जो होगा उसके अंदर होगा सेप्टल शिफ्ट, जो मैंने आपको बताया था कि इट विल गो फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा अपेक्स से बेस की तरफ. तो उसकी वजह से इसका जो वेक्टर होगा डीपोलराइजेशन का वो उल्टे साइड में होगा और लीड का डायरेक्शन तो टूवर्ड्स द अपेक्स है, एंड दैट इज व्हाई द क्यू वेव विल बी अ नेगेटिव वेव. ये जो क्यू वेव है हमारा, दैट इज व्हाई इट इज अ नेगेटिव वेव, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है. Then we move ahead to the R wave. Now R wave जो है वो ventricular depolarization, more specifically जो septal depolarization है उसको उस पे ऊपर डिपेंडेड होती है. So if we take that into consideration, जो डायरेक्शन होगा वो फिर से बेस से अपेक्स की तरफ होगा. ये हो गया हमारा वेक्टर जो कि +60 पे है और बाइपोलर लीड का भी +60 डायरेक्शन में. इसी की वजह से ये दोनों वेक्टर्स जो है ये एग्जैक्ट पैरेलल है, 1 फैक्टर, और मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है आर वेव का क्योंकि मसल मास भी बहुत ज़्यादा होता है वेंट्रिकल्स में, राइट. वी नो दैट द थिकनेस इज अबाउट 7.5 हाँ या 7.5 के आसपास होती है थिकनेस. तो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आर वेव, वाई इज द मैग्नीट्यूड हाई, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द मसल मास, एंड वाई इज द आर वेव पॉजिटिव, दैट इज बिकॉज इन दोनों के वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है. अगेन आर वेव इज पॉजिटिव. Then comes the S wave. S wave जो होगी that will be because of the Purkinje conduction. Purkinje conduction माने जो septal branches divide होने के बाद जो muscle mass में depolarization होता है, that will occur at this phase. तो होगा ये कि अब जो फिर से direction होगा vector का, that would be opposite in direction, lead to फिर से +60 के direction में ही है. That is why S wave is negative. और ये जो क्यू वेव था हमारा नेगेटिव जो था उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा थोड़ा सा, ये देखो मोर मैग्नीट्यूड. वाई? बिकॉज मसल मास वेंट्रिकल्स में ज़्यादा है. सो दैट इज द लॉजिक. और अब टी वेव में आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द वेक्टर का लॉजिक क्या है एग्जैक्टली, वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होता है. सो नाउ द टी वेव, राइट. तो टी वेव एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. तो जब नॉर्मल कंडक्शन होता है जो एस ए नोड से स्टार्ट होगा और नीचे जाएगा, तो उस केस में होगा ये कि जब एस ए नोड, हम कह रहे हैं कि एस ए नोड इज गेटिंग डीपोलराइज्ड, सो व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज बिकमिंग नेगेटिव, राइट. वो ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है. बट ए वी नोड जो है, जो कि उसके मतलब उसके आगे वाला ही, मतलब जो कंडक्शन चेन में आगे वाला पार्ट है, वो तो उससे रिलेटिव में पॉजिटिव है. उस मतलब इट इज़ नॉट पॉजिटिव बट उसके रिलेटिव में वो ज़्यादा पॉजिटिव है. So what happens is the SA node becomes negative and AV node becomes the positive end. इसीलिए वेक्टर का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड. सो इसीलिए मैंने वो SA नोड से AV नोड वाला जो डीपोलराइजेशन का वेक्टर था वो ऐसे निकाला था.
एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वाज प्लस 60 डिग्री, जो कि कोइंसाइड करता है हमारे बाइपोलर लीड के एक्सिस के साथ. बट नाउ फॉर द टी वेव व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रीपोलराइजेशन. तो रीपोलराइजेशन में अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नोड रीपोलराइज हो रहा है, तो व्हाट आई मीन इज कि ऐसे नोड पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव नहीं. So what will happen is AV node is still negative in comparison to the SA node. तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया. सो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बट डायरेक्शन ऑफ रीपोलराइजेशन वाज फ्रॉम SA node टू द AV node, राइट? क्योंकि पहले SA node रीपोलराइज हो रहा है, फिर AV node. तो जब भी रीपोलराइजेशन का डायरेक्शन बताया जाएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म होगा. दिस इज द जिस्ट फॉर टी वेव, है ना? सो अब मैं बताता हूँ कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. नाउ वी नो कि टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से फॉर्म होता है. और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या था, मैंने आपको बताया था, अपेक्स टू बेस, अपेक्स टू बेस. अब क्योंकि अपेक्स टू बेस डायरेक्शन है और वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रीपोलराइजेशन होगा, राइट? So this will be the vector for ventricular repolarization. ये lead to का direction, इसीलिए wave positive होगा, hence the T wave is positive. So P wave positive था क्योंकि जो SA node से AV node का depolarization था उसका vector ऐसे फॉर्म हो रहा था. Q wave नेगेटिव थी क्योंकि जो depolarization of septal shift था वो opposite direction में था, that was from the अपेक्स टूवर्ड्स द बेस, और हमारा लीड टू का एक्सिस ऐसा था, इसीलिए दिस वेव इज नेगेटिव. आर वेव वॉज अगेन पॉजिटिव क्योंकि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम में डीपोलराइजेशन हो रहा था वो फिर से बेस टू अपेक्स हो रहा था. एस वेव इज नेगेटिव क्योंकि परकिंजे जो था वो कंडक्शन जो था डीपोलराइजेशन का उसके अंदर डायरेक्शन वॉज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन, तो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में था. और टी वेव जो है दैट वाज अगेन पॉजिटिव क्योंकि रीपोलराइजेशन भले ही अपेक्स से लेके बेस तक हो रहा था, बट वेक्टर जो फॉर्म हो रहा था वो फिर से बेस से लेके अपेक्स तक फॉर्म हो रहा था, एंड दैट इज व्हाई द टी वेव इज पॉजिटिव. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू द फंडामेंटल्स ऑफ ईसीजी. अब इससे ये तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों हर एक वेव फॉर्म होती है, एंड वंस यू गेट टू नो दैट, कोई भी सवाल अगर इफ दे थ्रो इट एट यू, इफ अनलेस एंड अनटिल आपको एक्सिस पता है. अब अगर मैं पूछ लूँ कि लेट्स से जो लीड 1 है उसमें ईसीजी कैसा आएगा, इफ समबडी आस्क्स यू कि लीड 1 जो है, लीड 1 लेट्स से लीड 1 का डायरेक्शन ये है, तो उसमें ईसीजी कैसा आएगा अगर समबडी आस्क्स यू, तो ईजी है क्योंकि आपको ये क्या करना होगा कि अब ऐसे नोड से लेके जो अगर फर्स्ट स्टेप होगा एट्रियल डीपोलराइजेशन का जो पी वेव होगा वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डायरेक्शन है हमारे लीड 1 की, ये डायरेक्शन है हमारे SA नोड टू AV नोड के डीपोलराइजेशन की, तो हमको इसका फैक्टर लेना पड़ेगा इस एक्सिस पे, राइट? इसका कंपोनेंट जो हम लेते थे फिजिक्स में, इसका हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि छोटा होगा. तो पी वेव विल बी ओनली अ स्मॉल वेव, इतना भी नहीं, इतना, राइट? इफ दे आस्क यू कि जो हमारा डायरेक्शन होगा कि किसका बात करें हम क्यू वेव की, या फिर लेट्स गो टू आर वेव. आर वेव का डायरेक्शन फिर से ऐसा होगा, उसका वेक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसमें आर वेव थोड़ी सी ऐसी प्रोमिनेंट होगी. एस वेव, एस और टी वेव तो सॉरी एस और क्यू वेव तो ज़्यादा दिखेंगे भी नहीं, है ना? तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा. और टी वेव जो कि रिपोलराइजेशन का था वो भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, वो भी ऐसा छोटा वेव बन के दिखेगा. तो दैट इज़ वाई यू कैन एक्सप्लेन एनी लीड यूजिंग द लॉजिक ऑफ द सेकेंड लीड. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. Like the video if you liked it, and if possible share it to anybody who needs to understand ECG जिसका भी वाइवा होने वाला है अभी. So yeah, have a good one.